Welcome back. Akshay Shinde, accused of sexually assaulting two minor girls at a school in Maharashtra's Badlapur, has been shot dead in retaliatory firing by police. This after Shinde allegedly snatched an officer's weapon and opened fire. As per officials, when he was being taken to the court, the accused had snatched gun of a police escort party and fired on the police, which resulted in injury of an AP rank officer. The police retaliated and the accused was shot. He was taken to Shivaji Hospital in Thane's Kalwa, where he succumbed to his bullet injuries. We have some breaking inputs coming in. According to sources, Thane police have formed an 8-member team to investigate the incident. The team includes a deputy commissioner of police, an assistant commissioner, a senior police inspector and 5 experts. They will explore multiple angles of the case, including gathering technical data. So, a 8-member panel has been formed. We have Nilesh getting us more details. Nilesh, lot of reactions, political reactions coming in as well, casting aspersion. Now we're given to understand that a 8-member panel has been formed. Well, absolutely. Amid all of these doubts which are being raised onto the functioning of police officials, 8-member committee has been formed, which will be investigating all of these questions which is being raised by the opposition in the state of Maharashtra. Among these 8 members, the 5 expert members will be analyzing the incident on the basis of a technical database. That is, they will be going through the CCTV footages and forensic reports. Meanwhile, other 3 officials, higher rank officials, will also be involved into it. And now, what is more interesting is that around 4 members of this committee were also present during the incident. So, henceforth, it becomes a significant committee report, which will be submitting its report in few days. Meanwhile, the dead body of the Akshay Shinde, the accused, is still at Thane's Kalwa Hospital, which will be put forth to JJ Hospital, which is in Mumbai, where the postmortem will be done. Meanwhile, the family members of the accused have been raising some serious questions on the conduct of the police officials, raising questions that they had spoken to their son early afternoon today, but they were not informed if he would be moved from Taloja jail to Thane for any investigation. He spoke quite normally when they last spoke. Right. And had been promising to meet someday soon. But all of these shocking incidents which has come to light are raising some questions. Meanwhile, all right, Nilesh, the state... Stay on with us. Akshay's custodial death has ignited a major political controversy in Maharashtra. Chief Minister Eknath Shinde stated that the police acted in self-defense during the incident. Meanwhile, the opposition is criticizing the government, claiming the accused was killed to protect others who are involved in the case. Listen in. ये जो बदलापुर में आरोपी था वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत है। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। आणि जी पोलिसांना त्या ठिकाणी जखमी करण्याचं काम झालं आणि त्याच्यानंतर एन्काउंटर मध्ये जो अक्षय शिंदेचा मृत्यू झालेला आहे, या सगळ्या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे। या सर्व प्रकरणामध्ये पाणी कुठे मुरतंय का, याच्या मागचे कोण सूत्रधार आहेत का, याची चौकशी व्हायला पाहिजे। आणि आज महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा एवढा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, एक तर मुली सुरक्षित नाहीत आणि त्याच्यावर जर असं पोलिसांच्या माध्यमातून एवढं हलगर्जीपणा होत असेल किंवा अशा तऱ्हेने घटना होत असतील, या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी जी आहे ती सीबीआयच्या माध्यमातून झाली पाहिजे।
बदलापुर में जो अभी खबर आ रही है कि अक्षय शिंदे नामक के आरोपी का इनकाउंटर हो गया। ये नराधम को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मारा है कि पुलिस ने एक तरफा मारा है, यह इनकाउंटर है, या यह नराधम जो अक्षय शिंदे था ये पुलिस पर गोलीबारी कर रहा था, बदले में पुलिस ने इसको मारा है। बहुत सारे संशय इसमें नजर आ रहे हैं। पुलिस को, गृह मंत्री को इसमें एसआईटी बनाकर जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं यह नराधम अक्षय शिंदे किसी को बचाना तो नहीं चाह रहा था, कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था, कोई इसमें मिला तो नहीं है। क्योंकि जिस स्कूल में घटना हुई थी उसके न तो अब तक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, न तो ट्रस्टी को गिरफ्तार किया गया। क्या यह अक्षय शिंदे जानता था, नहीं जानता था, किसी को बचाना तो नहीं चाहता था, पुलिस ने इसे क्यों मार गिराया, खुद इसने अपने को मार लिया, इनकाउंटर है या जवाबी कार्रवाई है। बहुत सारी शंका संशय है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस को दुनिया के सामने ये बताना चाहिए एसआईटी के माध्यम से, जांच के माध्यम से कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उसको फांसी दी गई होती तो जनता का ज्यादा विश्वास सरकार जीत पाती। अगर उसको इनकाउंटर में भी मार गिराया है वो भी स्पष्ट करो। उसने पुलिस पर गोलीबारी की है, बदले में पुलिस ने उसे मार गिराया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कुछ है सरकार को, जनता को बताना चाहिए। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत है। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था उसका इनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस इनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। आणि जी पोलिसांना त्या ठिकाणी जखमी करण्याचं काम झालं आणि त्याच्यानंतर एन्काउंटरमध्ये जो अक्षय शिंदेचा मृत्यू झालेला आहे, या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला पाहिजे। या सर्व प्रकरणामध्ये पाणी कुठे मुरतंय का, याच्या मागचे कोण सूत्रधार आहेत का, याची चौकशी व्हायला पाहिजे। आणि आज महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा एवढा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। एक तर मुली सुरक्षित नाहीत आणि त्याच्यावर असं पोलिसांच्या माध्यमातून एवढं हलगर्जीपणा होत असेल किंवा अशा तऱ्हेने घटना होत असतील, या पूर्ण प्रकरणाची चौकशी जी आहे ती सीबीआयच्या माध्यमातून झाली पाहिजे। बदलापुर में जो अभी खबर आ रही है कि अक्षय शिंदे नामक के आरोपी का इनकाउंटर हो गया। ये नराधम को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मारा है कि पुलिस ने एक तरफा मारा है, यह इनकाउंटर है, या यह नराधम जो अक्षय शिंदे था ये पुलिस पर गोलीबारी कर रहा था, बदले में पुलिस ने इसको मारा है। बहुत सारे संशय इसमें नजर आ रहे हैं। पुलिस को, गृह मंत्री को इसमें एसआईटी बनाकर जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं यह नराधम अक्षय शिंदे किसी को बचाना तो नहीं चाह रहा था, कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था, कोई इसमें मिला तो नहीं है। क्योंकि जिस स्कूल में घटना हुई थी उसके न तो अब तक प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, न तो ट्रस्टी को गिरफ्तार किया गया। क्या यह अक्षय शिंदे जानता था, नहीं जानता था, किसी को बचाना तो नहीं चाहता था, पुलिस ने इसे क्यों मार गिराया, खुद इसने अपने को मार लिया, इनकाउंटर है या जवाबी कार्रवाई है। बहुत सारी शंका संशय है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस को दुनिया के सामने ये बताना चाहिए एसआईटी के माध्यम से, जांच के माध्यम से कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर उसको फांसी दी गई होती तो जनता का ज्यादा विश्वास सरकार जीत पाती। अगर उसको इनकाउंटर में भी मार गिराया है वो भी स्पष्ट करो। उसने पुलिस पर गोलीबारी की है, बदले में पुलिस ने उसे मार गिराया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो कुछ है सरकार को, जनता को बताना चाहिए।